$5 পাবে না তা কি করবে, অত ফকির। ভাইয়ের রিকোয়েস্ট পূরণ করো, ভাইয়ের নক করবে না তোমাকে, 100টা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমো তো দিবে তো। হুম হুম। এই বন্ধেই তোমার গিগটা বদুল কোথায় আছে কও। কিসের গিগ ভাই? ফাইবারের। ফটো রিটাচিং তোমার গিগ আছে, ফটো অ্যান্ড রিটাচিং আছে। ফটো এডিটিং আর এটা আছে। কিসের গিগ আমার? দিছি ভাই দেখেন। এইখানে কিওয়ার্ড। ইয়ার ফটোশপ দিতেছেন। ফটো এডিটিং এর দিতে ফটোশপ এডিটিং, ফটোশপ ফটো ফটো এডিট। ফটোশপ। ফটোশপ এডিটিং দেওয়া আছে, তারপরে ফটো এডিটিং ও রিপ্লেসিং দেওয়া আছে। কিছুই বুঝলাম না তোর কথা। ফটোশপ এডিটিং এন্ড রিপ্লেসিং দেওয়া আছে। ফটোশপ রিপ্লেসিং দেওয়া আছে। তো গোডাল একটা কিওয়ার্ড না, ওটা তো গোডাল একটা টাইটেলই হয়ে গেল। না না ভাই, ফটোশপ এডিটিং দেন তাহলে হবে। ফটোশপ এডিটিং দিলে হবে? হ্যাঁ। এই যে ফটোশপ এডিটিং। ঠিক আছে। গিগ কি এখানে ছিল না? 2 নম্বর পেজে ছিল। এই 2 নম্বর পেজ থেকে হাওয়া হয়ে গেছে নাকি, তার মানে কি? তার মানে হাওয়া গেছি। 6 দিন হইলো অর্ডার পাইনি, কোনো মেসেজ পাইনি, তা হাওয়া হইবে।
গেইছে ভাই ফটোশপ এডিটিং আর রিপ্লেসিং দিয়ে 3 নম্বর পেজে চলে গেছে, আর এখানে তো দূরের কথা। ফটোশপ এডিটিং এন্ড রিডাসিং তো ওটা তো গোটা টাইটেলই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটা যে 3 নম্বর চলে গেছে। তিন নম্বর পেজে যাইতে দিলি কেন? আচ্ছা সবাই একটা এখন কথা বলবেন, আপনারা কি রিসার্চ করছেন? আসলে কি আমি যে টাইটেলগুলো কইছি সেই টাইটেলগুলো আপনারা রিসার্চ করছেন, না অন্য কোনো টাইটেল কেউ কাজ করার এই উপলব্ধি করছেন? এমন কেউ আছেন যে বিকল্প কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছেন এই কাজ শেখার পর? নাই নাকি? কিসের সেকেন্ড পেজের বদরুল? ভাই ফটো এডিটিং এন্ড রিটাচিং দিয়ে সেকেন্ড পেজে আছে। ওই ফটো এডিটিং আর রিপ্লেসিং দিলে তো টাইটেল হয়ে গেল, ওই ঘুরে ঘুরে আমারটার মতো হয়ে গেল। টাইটেল হয়ে গেল। ফটো এডিটিং দিয়ে দেখো, শুধু ফটো এডিটিং দিয়ে দেখো, শুধু কয় নম্বর পেজে আছে। চারটা কথা হইলে টাইটেল হাজার রে ভাই, 3-4টা কথা হইলে টাইটেল হাজার। বায়ার অত সার্চ করে না, বায়ার শর্টকাট দিয়ে সার্চ করবে। ভাইয়া সার্চ দিবে ফটো এডিটিং বা ফটোশপ এডিটিং। এই ফ্লায়ার ডিজাইন বানাইতে পারবে কে? ফ্লায়ার ডিজাইন বানাইতে পারবে কে? ট্রাই করে নি এরা। বাহ, এই অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ব্যানার অ্যাড বানাইতে পারবে কে? এই দেখেন, এই দেখেন, মুখে এমনি করছিস মনে হয়, দেখেন। দেখছেন চাহিদা, দেখছেন? আপনাদের একটা কথা কই, এই গিগ গুলো যদি আপনারা বানান, এই গিগ গুলো মার্কেট প্লেসের চাহিদা যেমন আছে, আর এই গিগ গুলো এখনো পচে নাই, ঠিক আছে? এই গিগ গুলো পচাইতে পারে নাই। এলএলডিপি অনেক গিগ আছে পচে গেছে, কিন্তু এই গিগ গুলো পচে নাই। এই গিগ গুলোর উপরে কাজ করা শুরু করেন। শাহজালাল, জি ভাই। এই ব্যানার বানাও। আচ্ছা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে বানাও। ঠিক আছে। प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ड्राइंग आता है तो बेस्ट है, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वेशन करो कि ऑब्जेक्ट में एनवायरनमेंट भी कैसा दिख रहा है, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसकी साइज क्या है, मटेरियल उसका क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा विजुअलाइज करोगे, अच्छे 3D मॉडलर बन पाओगे। दोस्तों आपको 3D मॉडलर बनने के लिए आपको एनिमेशन का कोर्स तो करना ही है। तो ये कोर्स आप 10th या 12th के बाद तुरंत कर सकते हो, अपने ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। और आप एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो एंड आपको इंटरेस्ट है जल्द से जल्द इसमें आगे बढ़ने में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको फुल कोर्स करें। इसमें आपको ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, VFX सारी चीज़ें सिखाई जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका बेस है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप ग्राफिक डिजाइन सीखोगे तो आपको उसमें
अलाइनमेंट, कलर्स, ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह जानने को मिलेगा। एंड धीरे धीरे आप जैसे 3D में स्विच करोगे, वहाँ पे सबसे पहले जो है आपको सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, और उसमें सबसे पहले है वो मॉडलिंग सिखाया जाएगा। तो मॉडलिंग वो चीज़ है जो आप सीखना चाहोगे दोस्तों, बट आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। लेकिन आपको जो है सारी चीज़ें तो अच्छे से सीखनी है, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज़्यादा जो है 3D मॉडलिंग में टाइम देना है, और सबसे ज़्यादा आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। जितना दोस्तों आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, वैसे आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। दोस्तों 3D मॉडलिंग के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने होंगे? 3-4 जो सॉफ्टवेयर है रनिंग, जो अभी इंडस्ट्री में ज़्यादातर चल रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ। कई सारे हैं 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला जो है आपको सीखना है वो 3ds मैक्स, फिर आप माया सीख सकते हो। जी ब्रश है, वो स्क्रैपिंग के लिए ज़्यादा यूज में आता है, उसमें आप ऑब्जेक्ट वगैरह है वो बहुत अच्छे से बना सकते हो इजीली ब्रश की मदद से। तो आप जी ब्रश सीख सकते हो। इसके अलावा जो है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो सीख सकते हो। 3ds मैक्स और माया और जी ब्रश ये तीन सीख लीजिए। काफ़ी दूसरे भी सॉफ्टवेयर है, बट उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप अगर नए हो तो इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में उतना जानते नहीं होंगे। बट जो प्रोफेशनल स्टूडियोज में ज़्यादातर यूज होता है, जिससे आपको तुरंत ही जॉब मिल सके, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो है 3ds मैक्स, माया और जी ब्रश। ठीक है, मॉडलिंग के लिए ये एकदम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको आने ही चाहिए और इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। दोस्तों अभी टाइप्स ऑफ मॉडलिंग की बात करते हैं। दोस्तों 3D मॉडलिंग है वो काफ़ी अलग अलग फील्ड में यूज होता है। जैसे कि गेमिंग है, गेमिंग में जो मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी लो पॉली मॉडल्स होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 3D आर्किटेक्चरल में भी मॉडलिंग का यूज होता है। वहाँ पे जो है पूरा बिल्डिंग और बंगलोज वगैरह जो है, अपार्टमेंट वगैरह जो है, सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो वो जो मॉडल होते हैं वो इसमें ज़्यादा मेजरमेंट का रोल होता है। तो दोस्तों एनवायरनमेंट भी कई काफ़ी सारे जो टाइप होते हैं, जैसे कि इंडोर सीन है, आउटडोर सीन है, कोई पूरा जंगल का सीन है, उस तरह के अलग अलग जो है एनवायरनमेंट्स भी क्रिएट करने होते हैं। तो वो भी বদরুল একটা স্পোর্টস ব্যানার বানা দেখো, স্পোর্টস एक्सपोर्ट बना 3D मॉडलिंग में एक पार्ट में आता है। दूसरी एक सबसे जरूरी है चीज वहाँ पे जो है হ্যাঁ বলো। মানে एक्सपोर्ट्स बैनर বানাতে বললেন? হ্যাঁ, ব্যানার এই যে এরকম করে তুমি ইমেজ নিয়ে আসি বানায়ও না, হ্যাঁ, ব্যানার নিজের হাত দিয়ে বানাও। आइडिया तो पहले से ही एक्सपोर्ट्स बना देखी তাহলে। कैरेक्टर मॉडलिंग हो, जहाँ पे डिटेल में कैरेक्टर बनाया जाता है, कुछ है वो कैरेक्टर लोकली बनाए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह এরকম का ফুটবলের বা रिक्वायरमेंट है, कुछ जो है हाई पॉली के कैरेक्टर बनाए जाते हैं। अभी शायद आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा कि हाई पॉली क्या है, लो पॉली क्या है, पर जैसे ही आप ये 3D सॉफ्टवेयर सीखोगे तो मालूम पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों 3D एनिमेशन मूवीज बनती है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे 3D मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे गेम्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर 3D मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 3D आर्किटेक्चर का भी एक पूरा बड़ा फील्ड है, बट वहाँ पे जो है आपको एक ऑटोकेड सॉफ्टवेयर सीखना होगा या फिर रेविट सॉफ्टवेयर सीखना होगा। वो जो है इजीली मॉडलिंग के लिए यूजफुल सॉफ्टवेयर है। और एक गूगल स्केचअप करके आता है, वो भी सॉफ्टवेयर काफ़ी 3D मॉडलिंग के लिए यूजफुल है। बट दोस्तों अगर जब आपको 3ds में जैसे सॉफ्टवेयर आते होंगे तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है सीखने थोड़े इजी हो जाएंगे, तो उसको तो आप बाद में भी सीख सकते हो। बट आपको कौन से फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको कितने और सॉफ्टवेयर आगे सीखने हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी और कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूँ कि आपको फुल कोर्स कीजिए, तो फुल कोर्स की जो फी है वो आई थिंक 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में रहती है। और जो है 2 साल से 3 साल का बीच में टाइम रहता है। वहाँ पे जो है क्लियर बता दूं कि सिर्फ मॉडलिंग नहीं सिखाया जाएगा, आपको पूरा जो है कोर्स सिखाया जाता है मल्टीमीडिया का, जहाँ पे ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीएफएक्स सिखाया जाता है। पूरा कोर्स इसलिए कि आप कहीं पर भी अटके नहीं,
हो सकता है कई लोगों को রিপন কি ভাই 17 नंबर पेजे शाबाश अपनी स्किल का पता नहीं होता है। जब वो पूरा कोर्स करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि रियल में मेरे लिए 3D मॉडलिंग से अच्छा एनिमेशन है। कईयों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए 3D मॉडलिंग बेस्ट है। तो आप एक बार सारा कोर्स करोगे तभी मालूम पड़ेगा आपको किसमें बेस्ट हो, आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या क्रिएटिविटी किसमें ज़्यादा दिखा सकते हो। तो फुल कोर्स आप कर सकते हो। तो अगर इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है आपको और आपको पर्टिकुलर पता ফরহাদ ভাই, হ্যাঁ ভাই হ্যালো, বলো বলো কি হলো কথা কও কথা শোনা যায় না এর সাথে আমার কথা শোনা যায় না যায় ভাই যায় শোনা যাচ্ছে। শুভঙ্কর ভাই ভালো থেকে এখানে ভাই এদিকের কালারটা চেঞ্জ হয় না কেন?
কোন কালার চেঞ্জ করবা? যে এখন আবার হয়েছে অপারচুনিটিটা জিরো করার জন্য। এনডিটিভি থেকে কি ফোন দিচ্ছে সবাইকে যারা নতুন অ্যাপ্লাই করছে? হ্যাঁ, কেন? না, একজনকে ফোন দিছে, তো ও বলতেছে কি আজকে ফোন দিছিল। তোমার কাছে করাইয়া লোক থাকলে, ভালো লোক থাকলে তুমি আমাকে দিয়ে দিও, বাস। ফোন দিলে কি আর না দিলে কি? দিছি তো একটা, একটা তো দিছি, একটা তো দিছি ভাই। হ্যাঁ, পাইছেন না ওটা? হ্যাঁ আছে আমার কাছে। এটা কি আপনি ফোন দিচ্ছেন না অন্য কেউ ফোন দিচ্ছে ভাই? লোক যে অন্য জায়গা থেকে ফোন দিচ্ছে, এলইডি থেকে ফোন দিচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। অন্য কাছে ঢুকাবে নাকি ফিরত? আর না, আমি যদি ওখানে আমাকে কইলে আমি ঢুকাই দিব, ও যদি ঠিক থাকে সবকিছু। ফোন তো দিবে, আমি তো এখনো কাউকে রেজিস্ট্রেশন জমা দিইনি।